پہ آنے کے بعد اگر جو بھی ہو سختی ہے اس بار تو پلیز یہ مت سمجھیے گا کہ ہمارے ججز جو ہیں اس بار اسٹرکٹ نہیں ہے. امجد بھائی جو سختی کر رہے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ رائٹ ہیں. ہم لوگ جو بھی فیصلہ انشاءاللہ کریں گے وہ سوچ سمجھ کے انصاف کے ساتھ ہوگا. کسی کے ساتھ انشاءاللہ ناانصافی نہیں ہوگی. یہ بچے جنہوں نے چاروں نے پڑھا ہے یہ 3 بچے خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس بچے نے ہم سے اچھا پڑھا ہے. بالکل صحیح بات. یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. یہ بلکہ خود بھی ہاں میں جو ہے وہ سر ہلا رہے ہیں, اس بات سے وہ اتفاق رکھتے ہیں. باقی اس بچے کے لیے جو گائیڈ لائنز ہیں وہ دے دیجئے تاکہ پھر ہم وقفے کی طرف جائیں. بس آپ آگے جائیں گے. اپنا آپ کا آواز بہت اچھا ہے, تلفظ تھوڑا سا صحیح کریے. پڑھنے کی جو جس طرح کوشش کرتے ہیں نا آپ اگر وہ مقصد کو مقصد کہیں گے یا کوشش کو کوشش کہیں گے, شین کا آپ درست رکھیں, اپنا لہجہ صحیح رکھیں, اپنا انداز صحیح رکھیں. باقی انشاءاللہ کوشش یہ کہ آپ آگے تک جا سکتے ہیں. کیا وہ لائن دوبارہ سن لیں تاکہ پھر حسان آپ کومنٹس کے ساتھ وہ لائن کو پڑھ کے بھی بتا دیجئے گا. جی بیٹا وہ لائن کیا تھی؟ قربان میں ان کی بخشش کے. اب یہ لائن آپ جس طرح پڑھ رہے ہیں نا, اب اس کو آپ نے ٹیمپو بنا کے یہ ٹیمپو بنا دیا. ٹھیک ہے اب پڑھیے. قربان میں ان کی بخشش کے. سبحان اللہ. ابھی ٹیمپو وہی آیا, سم وہی آیا, لیکن میں نے اس میں لفظ بالکل ایک جگہ بیچ میں لا کے ڈیوائیڈ کر دیا. ماشاءاللہ. یہ تھوڑا سا پڑھو اگلا جملہ پڑھو. مقصد بھی زبان مقصد بھی زبان پر. اب آیا نا مقصد, اب تو آپ نے صحیح بولا. ماشاءاللہ. جی جی شاباش. جی فرحان بھائی آپ کچھ کہیں گے؟ نہیں میں بھی میرے بھی یہی کمنٹس ہیں اور جو آپ لوگوں نے کہا ہے, اور بس آپ تلفظ پہ محنت کریں انشاءاللہ آپ کامیاب. خواتین و حضرات, جان رحمت کا پہلا دن الحمدللہ بہت ہی کیسا لگ رہا ہے ویسے آپ لوگوں کو؟ اس بار بالکل ڈیفرنٹ مقابلہ ہے اس بار. بہت اچھا لگ رہا ہے. مجھے تو خود بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر. میں تو آگے کی پریپریشن کر رہا ہوں کہ آگے جب ٹیمز آئیں گی, سلیکٹ ہو جائیں گے بچے جو نکل کے آئیں گے آگے, ان کے درمیان جو مقابلہ ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا. وہ دیکھنے والا ہوگا ہے نا انشاءاللہ. جو یہ ایسا مقابلہ دیکھنے میں آپ لوگوں نے ایسا مقابلہ دیکھا نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ صابری ہو جائیں گے. 1300 سی سی کار جس ونر کو ملے گی اور 800 سی سی کار جس سیکنڈ آنے والے جو ثناخواں ہوں گے ان کو ملے گی, اور اس کے بعد جو تھرڈ جو آئیں گے رنر اپ وہ 150 سی سی موٹر بائک ان کو ملے گی. یہ انعامات اور بہت سارے انعامات, اور سیاست سب سے زیادہ یہ کہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں یہ جانا جائے گا کہ آپ ایک ثناخواں ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ خواتین و حضرات وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان عشق ہے, یہ ٹرانسمیشن جاری ہے انشاءاللہ. نماز عصر کی طرف باجماعت جو میرے یہاں پر بھائی لوگ ہیں, بھائی حضرات ہیں, وہ وضو کر لیجئے, جا کر باہر انتظام ہے وضو کرنے کا, آپ وضو کرائیے اور باجماعت نماز عصر یہاں ادا کی جائے گی انشاءاللہ. پھر ہم کچن کی طرف جائیں گے, تلو کچن کی طرف مسز خان کیا آج بنا رہی ہیں وہ الگ ہوگا, اور ہمارے ساتھ عالمگیر بھی موجود ہیں, اور ڈاکٹر ام راحیل آج فالسے کے حوالے سے, if I'm not wrong, فالسے ہی کری, آج فالسے کے حوالے سے. کل میں ریسرچ پڑھ رہی تھی ان کی, میں تو حیران رہ گئی کہ فالسے اور ساتھ ساتھ دوسرا ایک اور فروٹ تھا جامن کے, اور جامن کے بیج کس طریقے سے استعمال اور کون کون سے بیماریوں میں مفید ہیں. میرے لیے تو بہت ہی حیران کن انفارمیشن تھی. اس وقت ایک بات خواتین و حضرات, نماز عصر, ڈاکٹر ام راحیل کا سیگمنٹ اور تلو کا کچن مسز خان کے ساتھ ہم بھی واپس آتے ہیں. بھائی لو کاسٹ ٹریول کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ جیت چکے ہیں. مدینے چلا عمرے کا ٹکٹ لو کاسٹ ٹریول کی طرف سے مبارک ہو. مدینے چلا جھومتا جھومتا مدینے چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان عشق ہے, رمضان عشق یہی ہے کہ آپ لوگوں کے عمرے کے ٹکٹ یوں ہی آتے جائیں اور آپ لوگ ایسے ہی ہمارے لیے دعائیں کرتے جائیں. خواتین و حضرات
माया खान और माया खान की टीम मुंतजर आप लोगों की ATV और A+ पर लाइव आप हमारे साथ मौजूद हैं। हम थोड़ी देर बाद आगे चलेंगे। रेहान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, कुछ लोग वो वुजू के लिए गए, 2 मिनट वेट कर रहे हैं। यहाँ जमात तैयार है, जिनका वुजू है वो आगे। हाँ, तो जमात जो है हो गई है, तो आप लोग जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। रेहान भाई कहना चाह रहे थे कि मैं जमात खड़ी करने से पहले बता दूं सबको ये। रेहान भाई आप लोग बिस्मिल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। और हम जो है वो फालसे के और जो जामन के जो फायदे हैं हेल्थ के हवाले से, शुगर वालों आप आ जाए साथ में। आ जाओ, नमाज पढ़ ली। वैसे मैं लोगों पढ़ को लिया बता आपने? दूं कि मैंने नमाज पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। और जवेरे आ जाओ गुड़िया। खदरजाद हम जा रहे हैं, नमाज असर हो रही है इस वक्त हमारी तल्लो की किचन की तरफ। तल्लो के साथ साथ हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं केसे कनौर, लेमन मैक्स और आज तो 7 अप भी रखी है भाई, वाह जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर डॉक्टर साहब हमारे साथ। अच्छा मैं किचन से दूर ही रहूं, मेरा ख्याल बिजलियों के तार है। ये लग छोटी सी बच्ची चली जाती, बच गई। अच्छा हम उधर आ जाते हैं, शायद कैमरे वालों को आसानी हो। अच्छा जी, अमजद भाई इसलिए आए डॉक्टर साहब आपके साथ इस वक्त बिकॉज जामन का जिक्र है। तब आप मुझे बताइए, जो इन्फॉर्मेशन मैंने कल पढ़ी थी वो सारी बताइए, है बड़ी मजेदार। अच्छा बिल्कुल, जामन के बारे में सुना होगा, गर्मियों में आता है और आम की गर्मी को खत्म करता है। ठीक है, आम खाने के बाद जामन खा लें तो अब गर्मी का असर नहीं होता है, दाने नहीं निकलते। लेकिन जामन की जो सबसे खास बात है कि शुगर पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज के लिए बेहतरीन चीज है ये। अच्छा बहुत से लोग ये कहते हैं कि जामन खत्म हो जाएगा, सीजन है, फिर क्या करेंगे? तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने जामन में डाली है वो उसके हर चीज़ में डाली है। मसलन उसके पत्ते, उसकी शाखें, उसके फूल, उसकी जड़, उन सब में वो चीज़ मौजूद है, गुठली समेत, जो कि जामन के फल में मौजूद होती है। सुभान जब सीजन नहीं होता तो आपको वो तमाम चीज़ें मैसर होती हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है जो ब्लड और यूरिन के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से शुगर मेंटेन रहती है बॉडी में, ना लो जाती है ना अप जाती है। और जैसे लोगों का कॉन्सेप्ट ये कि हम जामन बैलेंस हो जाती है। बिल्कुल, जैसे अब होता है कि हमारा किसी का ब्लड वो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, जामन खाएंगे बैलेंस हो जाएगा या कम हो जाएगा, कहा जाता है कम हो जाएगा। तो जिनका लो शुगर लेवल होता है उनको ये कॉन्सेप्ट होता है, उनका ख्याल होता है जब हम खाएंगे तो हमारा शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। लेकिन ये इंसान की बनाई हुई दवा नहीं, अल्लाह की बनाई हुई चीज है, तो इससे शुगर लेवल डाउन नहीं होता, सिर्फ बैलेंस रहता है। अमजद भाई आपने कभी ये किया है ट्राई जामन को? बिल्कुल, मैं क्योंकि मेरे वालिद साहब को भी डायबिटीज थी, तो वो इसकी गुठली सुखा कर उसका सफूफ बनाकर भी पीते थे मेरे वालिद साहब। और हम भी बहुत खाते हैं ये क्या कहते हैं जामन की गुठली का सफूफ, जैसे अमजद भाई ने कहा, बना के रख लें। और जो डायबिटिक होते ही जिनको सुबह और शाम ½ टीस्पून पानी के साथ खाते रहे तो उनका जो लेवल है हमेशा मेंटेन रहता है, बिल्कुल बराबर रहता है। वेरी गुड, क्या बात है डॉक्टर साहब, मुझे पॉइंटर्स भिजवाइएगा। केसे कनौर इस रमजान अफ्तार में हर रोज बनाए कुछ स्पेशल विद केसे कनौर। और बाकी जो पॉइंटर्स मेरे हाथ में जल्दी से भेज दीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा अभी आप जामन के साथ कर क्या रही हैं? अच्छा, जामन की गुठली जैसे भी कहा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी अमजद भाई भी खड़े, तो हम जामन की स्मूदी बनाएंगे जो कि बहुत हेल्दी होगी, रिफ्रेशिंग होगी। और इसमें हम शुगर ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम जामे शीरी ऐड करेंगे। तो यानी कि पूरा अमजद भाई ये पी सकते हैं? बिल्कुल मतलब अगर सांस लिए पी सकते हैं। वेरी बिल्कुल, वेरी नाइस। तो इसमें तकरीबन हमने 1 कप जो है जामन लिए हैं, उसके बीज गुठलियां निकाल के, और तकरीबन 1 से 1.5 कप हमने ली है दही। इसमें डालेंगे जरा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत जरा सी। इसको हम ब्लेंडराइज करेंगे। और मैं लींबू भी लेके आया हूँ घर से। वाह या अल्लाह, अमजद भाई आप लींबू लेके फिर रहे हैं। अच्छा हमारे साथ तलो है, साथ सेहतमंद जिंदगी का दूसरा नाम, जो अब मिल रहा है एक नए अंदाज और मुनफरिद पैकेजिंग में। सर्फ एक्सेल हमारे साथ मुश्किल दागों का 100% सफाई, ज्यादा तेज। लेमन मैक्स आपकी कीमती क्रॉकरी और कटलरी को साफ करे बगैर किसी स्क्रैच के, और साथ साथ नेस्ले का मिल्क पैक। अच्छा कोई भी कपड़ा शपड़ा इस्तेमाल करें बेटा, साफी वगैरह, किचन के टॉवल्स, सर्फ एक्सेल की बास्केट है उसमें जरूर डालिएगा। अच्छा साथ साथ मिसेस खान, मिसेस किचन थी। मुझे ना आपकी गोल्डन फ्राइड विंग्स जो है ना इस वक्त क्या मजे किया। आपको कभी चाइनीज क्या नाम रेस्टोरेंट्स में भी नहीं इतनी मजे की मिलेंगी जो आज आप रेस्टोरेंट्स में मिलेंगी, जो आपको आज मेरे हाथ की मिलेंगी।
जो मैंने बड़े मजे से आप मेरी मैरिनेट डाइट उड़वाएंगी किया, और कुछ नहीं, आप मेरी डाइट उड़वाएंगी। मैरिनेट किया और अब ऑलमोस्ट रेडी है, सब कुछ पक चुका है और अब मैं चला भाई। आखिरी अब माइक मराहिल पकड़ में लो। हूँ। इसमें मैंने अच्छा, इस वक्त मिसेस खान की रेसिपी ऑन एयर भी आ रही है, अगर आप देख सकें देखें, तो इसमें हमें मैंने, नजर नहीं आ रही, लेकिन ऑन एयर आ रही है। सोया अलबत्ता। सॉस डाला है, चाइनीज सॉल्ट डाला है, एक अंडा भी बीट करके डाल दिया और नमक हस्बे जायका। इसमें ब्लैक पेपर और वाइट पेपर भी आप आधे से जरा ज्यादा चम्मच डाल दें, ये आधा किलो से ज्यादा है। और याद रखें कि आप ज्यादा बड़ी विंग्स नहीं लें, अगर इन केस आ जाती मुर्गी है बड़ी हो तो वर्ल्ड बिल्डिंग वाली मुर्गी हो तो फिर आप उसको थोड़ा सा हल्का सा दम दे दें, दम देकर फिर मैरिनेट करें, जैसे मैंने हल्का सा दम दिया था, वरना मुझे पता था ये कच्ची रह जाएंगी। अच्छा, आपकी रेसिपी अभी ऑन एयर भी जा रही है साथ साथ, आपको पता है? हाँ, अब आप इसको खाएंगी तो आपको मेरे ख्याल सबसे मजे की मेरी आज विंग्स ही लगेंगी। हैं, मैंने आपके हाथ से इतनी चीजें खाई हैं, सब चीजें इतनी मजे की होती है, लेकिन ना मेरी डाइट उड़वाएंगी, ना मैं फ्राइड खा सकती हूँ, ना मैं फैटिंग कुछ खा सकती हूँ। मैं नहीं, इसको मैंने सोक किया है, इसमें सोक किया है चटनी टिश्यूज में? टिश्यूज अच्छा, में टिश्यूज में किया है? मैंने रखा है इसके अच्छा, ऊपर। अच्छा। तो इतनी ये फैटी नहीं, इतनी ये ग्रीजी नहीं होगी, इतनी ऑयली नहीं बाकी होगी। मैदा कहाँ जा डालूंगी जिसमें मैदा तो बस थोड़ा सा इसको कवरिंग के लिए डाला है, बिल्कुल मुझे हल्का, थोड़ा सा और मैदा अंडा बहुत ज्यादा डाला लग जाता है, और कौन सी मेरी बहन है जिसको थोड़ा सा मैदा बहुत ज्यादा लग जाता है, थोड़ा और सा अंडा मैदा भी डाला है, बहुत ज्यादा अंडे लग की जाता है ना, covering। हम मैदे के सामने से गुजरते हैं, हमें मैदा लग जाता है। मुझे लगता है मैं पराठे का नाम लूं, ओहो कैलोरी चढ़ गई, खाली पराठे का नाम लेने से मुझे लगता है पता नहीं कितनी कैलोरीज चढ़ गई हो। कुछ ऐसे होते हैं ना, हम तो कहते हैं दूर से देखते भी हैं तो मैं तो बगैर पराठे के सहरी करता ही नहीं। हाय अल्लाह, मेरे प्यारे से भाई बगैर पराठे के सहरी नहीं करते। क्या खाया था आपने सहरी में आज? मैंने पराठा, अंडा और मेरी बेगम ने बनाया हुआ था कीमा, वो मैंने किसका? खाया। अच्छा, बछिया का कीमा। भाभी का खाना, आप लोग की सोच होगी कितने मजे का खाना बनाती हैं भाभी। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त खाना खिलाती है।